I hope you all have watched first video. Okay. In that video, I explained the periodicity properties. Okay. So now we will start group 15 elements. Okay. In P block, there is group 15 to group 18 elements are situated. So first we will discuss about the group 15 elements. Group 15 elements. Okay. This is also called nitrogen family. Nitrogen family. So all the members of nitrogen family are found in nature as phosphate, carbonates, sulfide, halides and nitrites. Chili, saltpeter, all these. So these are the compounds of 15 group elements. Okay. But nitrogen exists in free state also in nature. Most of the composition of atmosphere consists by the nitrogen, that is near about 78%. Okay. And on earth crust, in earth crust, nitrogen is found only in 0.02%. इतना कम. बाकी atmosphere में it is a major component. Okay. So what are the members of group 15 element? Group 15. So these are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. All these are the members of group 15 elements. Clear? Nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. So first, atomic number. We will discuss some properties. First we go through the physical properties. So the atomic number of nitrogen is 7, 15, 33, 51 and 83. Okay. This is the atomic number. Next, electronic configuration. Okay. So electronic configuration is 2s2, 2p3. 2s2, 2p3. This is the electronic configuration of nitrogen. And for phosphorus, 3s2, 3p3. Arsenic, 4d10, 4s2, 4p3. 4d10, 5s2, 5p3. And last one, bismuth having 4f14, 5d10, 6s2 and 6p3. Okay. This is the electronic configuration of all these elements. Remember one thing, nitrogen are placed in second period. It means it has only 2 shell or orbit. Okay. Phosphorus having 3, arsenic 4, 5. Gradually इस तरह से आप इंक्रीज होते जा रहे हैं. ओके. तो हम स्टडी करते हैं डाउन द ग्रुप, बट हमने यहाँ पर कंपैरेटिव स्टडी के लिए इस फॉर्म में उसे लिया हुआ है, लिखा हुआ है. क्लियर है? नेक्स्ट इज एटॉमिक मास. ओके. एटॉमिक मास ऑफ ऑल दीज. नाइट्रोजन 14, 30.9, 74.9, 121.7 and this is 208 something. Okay. So all these are the atomic mass of all members. Next, covalent radii. Okay. Covalent radii. Nitrogen ring 70. This is 110.
121, 141 and 148. Remember one thing, this is in picometers. Okay, the radii of all the atoms, all the elements atom is in picometer. Okay, 70, 110, 121, 141 and 148 picometer. Okay, now here you have clearly seen that the difference between first two members is large, okay, as compared to other side. Okay, but here it will increases by near about 40 picometer. Okay, and here it will increase only by 11 picometer, and here 20 and so on. मीन्स ये जो डिफरेंस है वो रिड्यूस हो गया है. ठीक है, यहां से एकदम रिड्यूस हो गया है. सो व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दिस? डेफिनेटली mark this configuration. Okay, here fourth cell is started, but after 4s orbitals become, after filling 2 electrons in 4s orbital, the 3d orbitals becomes activated. Okay, means the next electron comes to the 3d or innermost or पेनल्टीमेट सेल. ओके, पेनल्टीमेट सेल के डी में, मतलब n-1 के डी में इलेक्ट्रॉन्स फिल होना स्टार्ट हो गए. फिर उसके बाद पी में, एक्चुअल में एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस हिसाब से फिल होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो भी एक शेल कंस्ट्रक्ट हुई है, न्यू शेल, चाहे वो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल हो या सोडियम के लिए थर्ड शेल हो, पोटेशियम के लिए फोर्थ शेल हो, कोई भी शेल हो, यदि वो क्रिएट हो गई है तो सबसे पहले उस शेल के एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे. ठीक है, उसके बाद उसी शेल के पी में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, पहले उसके n-1 डी में चेक किया जाएगा वो वैकेंट तो नहीं है. इफ n-1 remains vacant, so next electron goes to the n-1 d orbital. Means for example, यदि फोर्थ शेल स्टार्ट हो चुकी है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, उसके बाद 4p में नहीं जाएंगे, पहले वो 3d में फिल होंगे. ओके, बोरबरी स्कीम में आपने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है n+l रूल में. तो उस अकॉर्डिंगली पहले डी में जाएंगे लास्ट शेल के पी में जाने के पहले. ओके, सो यहां पर आप देख रहे हो ये डी में इलेक्ट्रॉन्स गए, उसके बाद फिर पी में गए. तो यहां क्या इम्पैक्ट पड़ता है इन डी इलेक्ट्रॉन्स का? एक आपको कंसेप्ट वापस से याद दिलाते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट और इनर पेयर इफेक्ट. ठीक है, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द पेनिट्रेशन पावर और शील्डिंग इफेक्ट ऑफ सबशेल्स. सबशेल कौन सी है? एस, पी, डी एंड एफ. ठीक है, आपके लिए नोन सबशेल कितनी है अभी? एस, पी, डी, एफ. तो इन शेल्स में एस की सबसे ज्यादा अच्छी शील्डिंग होती है. मीन्स जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज ये न्यूक्लियस है एंड दीज आर द शेल्स. ठीक है, लास्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स से इनर कोर के इलेक्ट्रॉन्स प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, मतलब अंदर वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स शील्ड करके रखते हैं. अट्रैक्शन फोर्स उतना नहीं जा पाता है न्यूक्लियस का लास्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर जितना एक्चुअल में जाना चाहिए. ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्बिटल से भी हम बात करें तो सबसे स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होती है एस की, फिर उससे कम पी, देन डी एंड सबसे पुअर शील्डिंग होती है एफ की. इतना क्लियर हुआ? तो यहां पर अभी इस शेल के पहले सेकेंड शेल थी और सेकेंड शेल में सिर्फ 2 ही तो सब शेल होती हैं, एस और पी. तो इस में एस और पी सेकेंड
शेल के यदि फिल है तो एस और पी की शील्डिंग फिर भी स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग शील्डिंग होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बाहर उतना नहीं जा रहा है, थर्ड शेल तक उतना नहीं जा पा रहा है, जिससे उसका साइज इजीली इंक्रीज हुआ। तो यहां से यहां जाने पे साइज का इंक्रीज होने का रीजन सिर्फ ये था कि स्ट्रॉन्ग शील्डिंग इफेक्ट इम्पार्टेड बाय द इनर एस एंड पी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? बट इन दिस केस एस और पी जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स है उससे उसके अंदर n-1, देखो लास्ट शेल को अपन बोलते हैं अल्टीमेट शेल, देन उसके अंदर वाली पेनल्टीमेट शेल, एंड और अंदर वाली मतलब n-2 उसे बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ठीक है, अल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड एंटी पेनल्टीमेट शेल। ओके, तो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को n-1 शेल के इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग के कारण न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से अट्रैक्ट कर पा रहा है, क्योंकि यहां पर सपोज दिस इज n-1 और ये क्या है, n शेल है, तो n-1 जो शेल है उसमें यदि d प्रेजेंट है तो इन d की शील्डिंग तो पुअर है एज कंपेयर टू s एंड p। तो ये इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स और ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया। क्यों? क्योंकि इनके 10 इलेक्ट्रॉन के बिहाफ के बदले हमें 10 प्रोटॉन भी तो न्यूक्लियस में मिले, और प्रोटॉन्स तो यूनाइटेड होकर वर्क करते हैं, उनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दिखता है। तो इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया है, और वो क्या करेगा, इन शेल के लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। सो क्या होगा, यहाँ पर साइज रिड्यूस हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आके साइज रिड्यूस हो गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पर भी डी है, तो अब क्वेश्चन आता है यहाँ तो सिर्फ 11 का इंक्रीज हुआ, यहाँ 20 का क्यों हो गया? डेफिनेटली यहाँ आप फोर्थ शेल की डिस्टेंस पे सोचें इलेक्ट्रॉन को, जिसे न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, और इस केस में फिफ्थ शेल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर रहा है, तो ड्यू टू द डिस्टेंस द अट्रैक्शन फोर्स ऑफ न्यूक्लियस बिकम्स वीकर, दैट्स व्हाई इट्स साइज इज difference in size is larger as compared to this case. Clear? इधर आते हैं, हम सिक्स्थ सेल तक जा चुके हैं, न्यूक्लियस से सिक्स्थ सेल की डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। दूसरी बात, ज्यादा है तो फिर इंक्रीमेंट यहां से यहां ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप देख रहे हैं आराम से सिर्फ 7 पिकोमीटर का डिफरेंस है। ये डिफरेंस बहुत, पिकोमीटर तो खुद में ही बहुत छोटी सी क्वांटिटी है, and 7 picometer is near about no change। जैसा इस चेंज को हम नेग्लिजिबल भी कर सकते हैं, मान सकते हैं, बट यहां पर रीजन क्या है? ओके, F और D दोनों ऑर्बिटल्स अंदर फिल हैं, और F की पुअरेस्ट शील्डिंग होती है among sp df, so F having poorest shielding effect and D is also having poor shielding effect. That's why n-2f and n-1d electrons impart poor shielding. That's why its nucleus, बिस्मिथ का न्यूक्लियस बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो गया, और अट्रैक्शन फोर्स को, न्यूक्लियस के अट्रैक्शन फोर्स को F और D के ऑर्बिटल्स उतना, इलेक्ट्रॉन्स नहीं उतना बचा पा रहे हैं, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स लास्ट शेल पर बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, इसीलिए साइज उनका इतना कम इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो ये ट्रेंड आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, अच्छा, व्हाई दिस अबाउट द कोवलेंट रेडियाई। हम कोवलेंट रेडियाई की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि ऑल दीज आर नॉन मेटल्स, दो दे आर मेटल्स, बट when we talking about the radii means न्यूक्लियस से जहां लास्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जिस पर न्यूक्लियस का इफेक्ट जा सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, उस डिस्टेंस को अपन रेडियाई बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये अकेले तो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो ये किस फॉर्म में मिलते हैं हमें? कोवलेंट बॉन्ड के फॉर्म में मिलते हैं। तो इनकी जो रेडियस है वो हम कोवलेंट रेडियाई, एटम तो मिलता नहीं है इनका फ्री, तो हम एटॉमिक रेडियस की बात कर ही नहीं सकते इसमें।
और ये तो मेटल नहीं है तो मेटेलिक रेडियस की भी बात नहीं करेंगे. हाँ, इसमें आगे जाके हम आयन बना के रेडियस की बात कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट इज आयनिक रेडियस. ओके, ionic radii. Okay, okay. So nitrogen 71, 71, 212, 221, and antimony 76 and bismuth 103. Okay, this is also in picometer. Clear? So ionic radii of nitrogen is 71, phosphorus 212 and arsenic 221. See, this is observed that the radius from nitrogen to arsenic is gradually increases. Okay, and after that sudden change in the radii of ionic radii of bismuth and antimony and bismuth. Okay, so why it is so? See, all these are the non-metals. ये क्या है? Non-metals. And non-metals having a tendency to attract electron. And the general configuration of nitrogen family is NS2 NP3. Okay. So by saying this configuration, we clearly know about the requirement of each element. They requires 3 electrons more to become stable. Okay, so non-metals having a tendency to gain electron and form electronegative species या anion बनाने की उनकी टेंडेंसी होती है. ठीक है, क्योंकि ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर इनका स्ट्रॉन्ग है. दैट्स व्हाई दे gain 3 electrons and form E3 minus. If we represent all the elements with E, okay, so E3 negative मतलब 3 negative ion बना रहे हैं. Okay, so atoms itself increases and we know about the size difference of the parent atom and anion. Clear? So anions are always greater than the parent atom. Okay, तो इनका साइज तो parent atom से बड़ा है, but atom itself increases when we move down the group. So anion is also increases. इनका anion भी increase हो रहा है. ठीक है, अब हम यहाँ बात करते हैं antimony bismuth. Antimony and bismuth prominently shows metallic character. When they show metallic character, so they releases 3 electrons from the p subshell. Bismuth, antimony और bismuth 3 इलेक्ट्रॉन p subshell के रिलीज कर देते हैं. क्यों? क्योंकि metals है and metals are having a tendency to release electron and becomes positively charged ions. So they acquire 3+ configuration. ओके, इनके एनायन क्या होगा? ये कैटायन बनाएंगे और 3+ चार्ज होगा. तो डेफिनेटली पेरेंट एटम से तो स्मॉल होंगे. ये एटम से बड़ा ये है तो डेफिनेटली इस आयन से बड़ा ये आयन हो गया. तो यहाँ आप किसी एक ट्रेंड को लेके नहीं चलेंगे. जब भी ट्रेंड में वेरिएशन आता है तो हमें कंसेप्ट का ग्राउंड भी चेंज करना होता है. आप उसी कंसेप्ट को लेके आगे नहीं जा सकते हो. आप कहो कि ये भी नेगेटिव बनाएंगे, बिल्कुल नहीं बनाएंगे, बिकॉज दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स. मीन्स दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर एंड दीज आर द इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर. These elements having electronegative character or non-metallic character. So this is the difference. And this is the train in ionic radii of 15 group elements. Okay, now come to the boiling point and melting point. Not boiling point and melting point, ionization enthalpy. First we will discuss about the ionization enthalpy and electronegativity, and at last we will discuss about the melting point and boiling point.
So next is ionization enthalpy. Okay, p orbital. What is the condition of p orbital in all the elements? P orbital is exactly half filled in 15 group elements. Okay, exactly half filled. It means it is stable as compared to p3 as compared to p2 p1 या p4 p5 से तो ज्यादा stable है. Okay, so being a stable configuration, the ionization enthalpy of group 15 elements is comparatively higher than the group 16 element. ग्रुप 16 एलिमेंट में p4 है, तो वो तो चाहेंगे ना कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वो एग्जैक्टली हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन पोजेस कर लेंगे जिससे उनको स्टेबिलिटी मिलेगी. ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ग्रुप 15 एलिमेंट्स बीइंग अ एग्जैक्टली हाफ फील्ड p ऑर्बिटल, दे आर स्टेबल much more than the group 16 element and they have higher ionization enthalpy as compared to 16 group elements. Okay, so their ionization enthalpy is (1047, 947). एग्जैक्टली फिगर तो उतना याद नहीं रहता हम लोगों को, बट दिस इज द अप्रॉक्स वैल्यू है. ओके, नेक्स्ट इज 834 and this is 703, I think. Okay, so these are the approx value. Okay, so ionization enthalpy of nitrogen is 1402. इसकी कितनी है 1047, फिर 947. ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही है डेफिनेटली. Why? Because when we go from top to bottom in a group, the size, atomic size is gradually increases. So size increase होना means लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन और दूर होते जा रहा है न्यूक्लियस से, तो उसे रिलीज करने के लिए कंपैरेटिवली कम एनर्जी लगती जाएगी. ओके, सो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ग्रेजुअली डिक्रीजेस बिकॉज साइज ऑफ एटम्स आर इंक्रीजेस. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ. है ना? ये सपोज ए एंड बी बॉन्डेड विद द शेयरिंग पैटर्न. ओके, सो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज शिफ्टेड टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. ठीक है, so suppose B is more electronegative than A, so the electron pair little bit shifted to the B and it acquired minus and this is partially positively charged species. Okay, this is electronegativity. Okay, so electronegativity में पूरे एटम का कौन सा पार्ट एक्टिव रहता है? न्यूक्लियस, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिवली चार्ज क्लाउड, उसे अट्रैक्ट करने के लिए पॉजिटिव चार्ज का बनना चाहिए, तो न्यूक्लियस क्या है पॉजिटिवली चार्ज. तो एज सुन एज व्हेन वी गो फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मिथ, देयर साइज इज इंक्रीजेस, सो न्यूक्लियस इज वेरी फार फ्रॉम, ग्रेजुअली फार फ्रॉम द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हम ये कह सकते हैं कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर होते जा रहा है क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ग्रेजुअली डिक्रीज होगा. ठीक है, तो क्या होगा, जैसे जैसे एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज ऑल्सो एलिमेंट इज ऑल्सो डिक्रीजेस. ओके, सो फॉर नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज 3.0, 2.1, 2, 1.9 and 1.9. ओके, ये इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है. फिर क्वेश्चन आएगा यहां सेम क्यों है? देखिए, पी ब्लॉक में आप सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस पे फोकस करेंगे. आपके लिए कॉम्पिटिटिव के लिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन अराइज होते हैं कंपैरिजन के लिए या कंपटीशन के लिए. ठीक है, तो जो एक्सेप्शनल केस है
क्योंकि जो नॉर्मल केस होता है तो उसमें हम ट्रेंड पकड़ के चलते हैं कि हाँ इसमें ये ट्रेंड फॉलो हो रहा है, तो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं या हम पहले से प्रिडिक्शन लगा लेते हैं कि हाँ इस ट्रेंड ये कंसेप्ट लगाना है, इस कंसेप्ट से अब ये आगे जाएगा। नहीं, लेकिन यहाँ यदि कुछ एक्सेप्शनल केस आ रहा है तो हमें वो उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि नॉर्मल बात तो हर बच्चा बता देगा, आप कहाँ उनसे डिफर करोगे जहां आप इस तरह की चीजें सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 1.9 और 1.9 सेम हो रहा है, सिंपल सी बात है। इसमें एफ था, एफ ऑर्बिटल की शील्डिंग तो और ज्यादा पुअर थी, तो इस वजह से उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा था बिस्मिथ में, तो ये वहां पर नहीं के बराबर या नेग्लिजिबल डिफरेंस होता है। ओके, हम इसमें यह फिगर लिख रहे हैं, आपको देखिए ना कितने माइन्यूट चेंज हम लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सारा कुछ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज ड्यू टू द f ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन, इट इज 1.9। क्लियर है? नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। For nitrogen, it is 63 Kelvin. Okay. Here 317. For arsenic 1089, and bismuth it is 904, and sorry, antimony it is 904, and bismuth it is 544. ठीक है, melting point ये in Kelvin. See the difference. Okay. आप एक ट्रेन सोचे कि हम उस ट्रेन को देखें कि वो फॉलो हो रहा है, आप नहीं एक साथ एक कंसेप्ट नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों? आप यहाँ देखिए, इधर से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है। ओके, हियर टू हियर इट इज डिक्रीजेस, यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो हमारे पास इसमें क्या कंसेप्ट लगाना है? सिंपल। फर्स्ट, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हम किसी भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज के मॉलिक्यूल्स को दूर कर रहे हैं, या किसी भी एक मेटल के जो कर्नल्स हैं उन्हें हम दूर कर रहे हैं, उसके एटम को, चलिए हम एटम कह देते हैं, उसके एटम्स को हम दूर कर रहे हैं, तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है उसे हमें ब्रेक करना है बाय प्रोवाइडिंग द हीट। सो दीज आर द मेटल्स। ओके, सो इसमें हमें क्या ब्रेक करना है? मेटेलिक बॉन्ड को ब्रेक करना है। बट दीज आर नॉन मेटल्स। सो यहाँ पर क्या है नॉन मेटल्स में? यहाँ पर क्या है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। क्लियर है? इसमें क्या है? कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, सो नाइट्रोजन इज एग्जिस्ट एज N2, फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में मिल रहा है, और इस तरह से ये भी AS4 के फॉर्म में भी मिलेगा। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को यदि हम याद करते हैं तो सबसे पहले यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है, इन मॉलिक्यूल्स की बात करें, ये कोवलेंटली बॉन्डेड है क्योंकि ये नॉन मेटल है, तो इनके जो मॉलिक्यूल है वो कोवलेंट मॉलिक्यूल है। और कोवलेंट मॉलिक्यूल्स सारे के सारे नॉन पोलर है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल एटम से बने हैं, ये होमोएटॉमिक है, तो इनका अपना पोलरिटी तो है नहीं। Being a covalent molecule, they do not have any polarity. Same, ये आइडेंटिकल भी तो है, होमोएटॉमिक है, तो होमोएटॉमिक में जब एटम ये चेंज नहीं हो रहा है, एलिमेंट ही चेंज नहीं हो रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अराइज होने का सवाल ही नहीं है, तो पार्शियल पोलर चार्ज भी नहीं होगा। क्लियर? वापस आते हैं। तो N2, एक तो इनका अपना एटॉमिक साइज स्मॉल, और फिर एटॉमिसिटी तो है, तो डेफिनेटली इसका सरफेस एरिया कम होगा। तो कोवलेंट कंपाउंड्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट डिपेंड्स ऑन द सरफेस एरिया आल्सो। Clear? So surface area of N2 molecule is much more smaller than the P4 molecule, because P4, phosphorus having atomicity 4, as well as its size is also increases from the increases by the nitrogen. It has 70 picometer and this one is 110. एटॉमिक साइज में भी इतना डिफरेंस और एटॉमिसिटी भी बढ़ रही है, तो सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल इज बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों में। दैट्स व्हाई देयर मेल्टिंग पॉइंट इज आल्सो डिफर मोर। ओके, देयर, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत डिफरेंस में है। फिर हम यहाँ पर आते हैं, तो यहाँ आने पे अब क्या हो रहा है? जैसे जैसे साइज बड़ा होते जा रहा है, तो इनके और भी जो
लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 3 + 2 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये 5 ऑल द 5 इलेक्ट्रॉन्स ट्राई टू बॉन्डेड विद द अदर एटम एंड फॉर्म अ क्लस्टर। क्योंकि न्यूक्लियस का होल्ड डिस्टेंस बढ़ने के कारण, शेल्स बढ़ने के कारण कम हो रहा है, तो इस फोर्स के कम होने से इसके पांचों इलेक्ट्रॉन्स सराउंडिंग में बॉन्ड बनाने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बहुत एसोसिएटेड रहेंगे। तो ये 5 वैलेंसी फिर भी शो कर पाएंगे, या सराउंडिंग में उसके अनपेयर्ड 5 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्ड बनाने की कोशिश कर सकते हैं, जिससे क्या होगा? इनका एसोसिएशन ज्यादा है, इसलिए इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। तो यहां हमने कोवेलेंट मॉलिक्यूल के टर्म में बात की। इधर आते हैं। एंटीमनी और बिस्मुथ बोथ आर मेटल्स। ओके, सो देयर कर्नल्स इज बॉन्डेड विद द मेटेलिक बॉन्ड। इनके कर्नल्स मेटेलिक बॉन्ड से बंधे हुए हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका कर्नल, इसका साइज छोटा था, इस साइज में बड़ा था। तो जो छोटा साइज के कर्नल्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस, ये कर्नल है, और यहाँ पर ये साइज बड़ा है। सो बड़े साइज के कर्नल की बॉन्ड लेंथ बड़ी है, छोटे साइज के कर्नल की बॉन्ड लेंथ छोटी है। तो डेफिनेटली छोटा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, इसीलिए उसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लग रही है और इसमें एनर्जी कम लगेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये चेंजेस हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट में? तो इसमें ग्रेजुअल चेंज कैसा आएगा? इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और था। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा? इसमें ग्रेजुअल इंक्रीज होता जाएगा। क्यों? क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया बढ़ेगा इनका। ठीक है, और मेल्टिंग पॉइंट में इतना वेरिएशन इसलिए आ रहा था क्योंकि वो सॉलिड स्टेट को हम मेल्ट कर रहे थे। इनकी अपनी सॉलिड स्टेट से हमने चलना चालू किया था। तो जो सॉलिड स्टेट है उसमें एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता है। ठीक है, उनका अपना एक पैटर्न होता है, आप सॉलिड स्टेट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो हर एक सॉलिड में उसके पार्टिकल्स का, वो मॉलिक्यूल्स हो चाहे आयन हो, एक प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। तो उस रेगुलर अरेंजमेंट की वजह से वो टाइटली पैक्ड थे, तो वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट के कारण इनमें हमें ना वेरिएशन मिला। बट एक बार सब्सटेंस मेल्ट हो गया, मीन्स वो लिक्विड स्टेट में आ गया, और लिक्विड का तो कोई स्पेसिफिक अरेंजमेंट होता ही नहीं है। ठीक है, तो वहां पर क्या वर्क करेगा? सिर्फ इनका सरफेस एरिया। पैटर्न की तो बात ही नहीं है, वहां यहां पैटर्न चल रहा था, वहां नहीं चलेगा। तो इनका बॉइलिंग पॉइंट ग्रेजुअली इंक्रीज होता जाता है व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, इन दिस ग्रुप। क्लियर है? ठीक है, तो ऑल दीज आर द physical properties of 15 group elements. Okay, next is the chemical properties. In chemical properties, first is oxidation state. In 15 group, the common oxidation states are -3, +3 and +5. These are the common oxidation state. Okay, but some elements like nitrogen having -3, -2, -1, 0. All the elements from any group in elemental state, they have oxidation state 0. Okay, so 0, +1, +3, +5. Okay, ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। स्पेशली नाइट्रोजन में तो ये ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट possessed by the nitrogen. Okay, in phosphorus, phosphorus में क्या होगा? -3 भी मिलेगी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये -3 तो कैरी करते हैं बिकॉज ड्यू टू द नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। ओके, बट व्हाट अबाउट एंटीमनी एंड बिस्मुथ? These are the metallic metals. These have metallic character, so they would not form any negative oxidation state, और ये negative oxidation state शो ही नहीं करेंगे, बनती नहीं है, क्योंकि मेटल्स है, मेटल्स नेगेटिव नहीं दिखाएंगे। ठीक है, तो इनका जो नॉन मेटल्स है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, उनमें हम मान सकते हैं नेगेटिव मिल रही है, बट
यहां तक आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव कैरेक्टर भी शो कर रहे हैं, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ठीक है। इन सम केसेस नाइट्रोजन shows +1, +2 and +4 also. नाइट्रोजन कुछ केस में ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के कुछ केस मीन्स ओनली विद द ऑक्सीजन, सॉरी मैंने बोल दिया था कुछ केस में, नहीं, नाइट्रोजन व्हेन इट अटैच विद द ऑक्सीजन एंड फॉर्म कंपाउंड्स विद द ऑक्सीजन, इट कैन शो +1, +2 and +4 oxidation state also. But phosphorus shows only +1 and +4 oxidation state with in some oxo acids. ठीक है, तो हम इसे फिर से कंपाइल करते हैं कि इस ग्रुप की -3, +3 and +5 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बाकी कुछ मेंबर्स स्पेशली नाइट्रोजन shows the oxidation state ranging from -3 to +5. And in some compounds with oxygen, nitrogen and phosphorus forms their +2, +4 oxidation state also. Okay. बिस्मिथ के केस की बात कर रहे हैं. In P block, this is a common thing that the lowest member means सबसे नीचे वाला हर एक ग्रुप में, उसे हम heavier members भी बोल सकते हैं, higher member भी बोल सकते हैं. सो जो हेवीएस्ट या हायर या लोअर मेंबर जो है, लोअर मीन्स सिचुएटेड एट द लोअर साइड एंड हायर मीन्स इन द फॉर्म ऑफ एटॉमिक नंबर. तो जो सबसे नीचे वाला मेंबर है वो इनर्ट पेयर की वजह से 2 यूनिट कम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, ठीक है. मीन्स यदि हम स्टेबिलिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहे हैं तो ऊपर वाले मेंबर्स की 3+ और +5 ज्यादा स्टेबल दिखेगी, बट जैसे जैसे हम मूव करेंगे नीचे की तरफ में जहां से D और F ऑर्बिटल्स आना स्टार्ट होते हैं, ठीक है, वहां से उनकी +5 वीक होने लगती है, कम स्टेबल होने लगती है, लेकिन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू +5. मीन्स P ब्लॉक में आप देखेंगे जो सबसे नीचे वाला मेंबर है उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है, उससे 2 यूनिट कम. क्यों? क्योंकि इनर्ट हो जाता है एस का पेयर. अब मैं आपको फिर से रिवाइज कर दे रही हूँ, ये 11th में आपने पढ़ा हुआ है इनर्ट पेयर इफेक्ट. ओके, सो सपोज दिस इज न्यूक्लियस एंड दीज आर द शेल्स. ये लास्ट शेल है, इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, बट उसके n-1 में d ऑर्बिटल फिल होगा, n-2 में f ऑर्बिटल फिल होगा. बहुत अच्छे से देखेंगे, लास्ट शेल में s और p ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली ns2 एंड np1 to 5 तो होगा. 1 to 5 हम नोबल केस की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है. तो ये कॉन्फ़िगरेशन को बहुत ध्यान से समझेंगे आप. अंदर n-1 d है और n-2 f के इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, उनकी शील्डिंग पुअर है, तो डेफिनेटली इसकी शील्डिंग पुअर होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स जितना बाहर जाना चाहिए उससे कुछ ज्यादा ही जाएगा, ठीक है. उसके बावजूद भी यहाँ लास्ट शेल में जा तो रहा है, लेकिन लास्ट में एस पी और पी भी है. तो आपको पहले भी बताया है न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन पावर एस पर ज्यादा होता है एज कंपेयर टू पी, क्योंकि एस सिमेट्रिकल है, उसकी एनर्जी लोअर है, ठीक है. तो एस पर ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स पहुंच रहा है न्यूक्लियस का, तो इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन्स की पुअर शील्डिंग की वजह से लास्ट शेल के एस के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत टाइट से बंधे हुए होते हैं, ओके, न्यूक्लियस से वो बहुत टाइट से होल्ड किए हुए हैं. तो क्या करेंगे, वो इजीली इलेक्ट्रॉन ये वाले रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसका मतलब ये इनर्ट हो जाते हैं, और ये 2 हैं इसलिए हम इसे पेयर बोलते हैं. तो दिस इज इनर्ट पेयर, ठीक है. तो इनकी पुअर शील्डिंग की वजह से वो इनर्ट हो जाते हैं. तो जो लोअर मेंबर में तो एफ मिल रहा है, तो क्या होगा, लोअर मेंबर्स के 2 इलेक्ट्रॉन कम पार्टिसिपेट करेंगे, इसका मतलब उनकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है इसके कंपैरिजन में, ठीक है. अब फिर एक एक्सेप्शनल केस आता है,
बिस्मिथ सबसे लोअर मेंबर है, उसके +5 नहीं मिलना चाहिए, बट एक और बात ध्यान रखेंगे, बिस्मिथ F5 ये एग्जिस्ट करता है, इसमें तो इसकी +5 है, तो इनर पेयर के हिसाब से तो +5 नहीं मिलना चाहिए था बिस्मिथ का। बट यहाँ एक रीजन आप लिखेंगे, वो ये है कि F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इतनी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स के लिए एफिनिटी इतनी ज्यादा है कि वो बिस्मिथ के इस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा देता है। तो इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ये डी है, 1 2 3 4 5, ये पी है, ये ऐसे, ठीक है। बिस्मिथ का ये 6 है, 6p एंड 6d, क्लियर है। अब फ्लोरीन क्या होगा, उसकी एफिनिटी बहुत ज्यादा है और उसकी अपना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी है, वो क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करा देगा, एक्साइट करा देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हो गया। अब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। अब फ्लोरीन जो है वो साइज में छोटा है, बिस्मिथ तो बड़ा है, तो उसके चारों तरफ में 5 फ्लोरीन फिर भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। वो इतनी सराउंडिंग बिस्मिथ प्रोवाइड कर देता है कि ये 5 रह पाते हैं, क्योंकि फ्लोरीन ने ही तो इतनी मेहनत की थी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कराने की। सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन, आप कहेंगे क्लोरीन ये करा दे, नहीं, क्लोरीन की उतनी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है, उसकी क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इतनी नहीं है कि वो इसे अनपेयर करा सके, ठीक है। तो एक्सेप्शन केस ये हो गया कि इनर पेयर इफेक्ट होने के बावजूद भी बिस्मिथ का फ्लोराइड क्यों बिस्मिथ का पेंटाफ्लोराइड क्यों एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी। लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ओके। किसी भी एलिमेंट की यदि रेंज है ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को छोड़ के यदि वो एटम किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, ओके, वो बीच की, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, बीच की कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट में यदि वो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, ये 2 तो सिर्फ ऑक्सीजन के साथ में, आप इसे अलग कर दीजिए, यदि किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो एलिमेंट डिसप्रपोर्शनेट होगा। तो डिसप्रपोर्शनेशन क्या है? डिसप्रपोर्शनेशन, ओके। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन याद कर लीजिए। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में कोई भी एक एलिमेंट अपनी किसी एक ऑक्सीडेशन स्टेट में रिएक्टेंट साइड में होता है, ठीक है, और रिएक्शन में वो स्पीशीज ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। मतलब एक ही स्टेट से ऑक्सीडेशन भी होना और रिड्यूस भी होना। तो डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन में सिर्फ एक ही एलिमेंट में रिडॉक्स होती है। अब कैसे देखिए, नाइट्रस एसिड HNO2, ओके, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसकी? +3। इसकी कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है? +3, ओके। सो आफ्टर रिएक्शन इट विल कन्वर्टेड इनटू HNO3 प्लस NO प्लस H2O, ठीक है, ये रिएक्शन है। अब ये क्यों डिस्प्रपोर्शनेशन है, देखिए, ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट से, मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल आप ले रहे हैं, इस रिएक्शन को आप बैलेंस कर लीजिए। मतलब एक ही बंदा, एक सिंगल एटम ऑक्सीडाइज भी होगा, रिड्यूस भी होगा, ऐसा नहीं है। इसमें कुछ स्पीशीज ऑक्सीडाइज होती है, कुछ रिड्यूस होती हैं। तो आप यहाँ देखिए, इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी, +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें, और इसमें इसकी +2 है, ठीक है, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब आप देखिए ये क्या हो रहा है, +3 से +5 भी जा रहा है और यहाँ +2 में भी कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन, ओके। सो यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। तो जैसे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस चार्ज बढ़ेगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से इसका प्लस चार्ज कम होगा, तो
तो यहाँ क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन, तो दिस इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप कहेंगे कि +5 पर है, तो +5 पर वो डिसप्रोपोर्शनेट कैसे होगा? +5 के ऊपर जाने की गुंजाइश नहीं है ना, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा। मतलब नाइट्रोजन यदि +5 स्टेट में है तो वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, सॉरी उसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब वो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा और खुद गेन करके यहाँ आने की कोशिश करेगा। तो ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट जो नाइट्रोजन की है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाएगी, वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। और इधर वाली जो स्टेट है वो इधर जाने की कोशिश करेगी, वो कैसे होगा, बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है मतलब किसी को मिलेगा, उसका रिडक्शन होगा। क्लियर है? तो ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे और ये बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। ओके, तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट।